Sport Kamatgarh. Then the last match, winner of this game and winner of next game. So back to cricket, remind you, Gursai B, Vihan Mitkumar Gursai B won the toss and they elected field first to openers on the ground of Kamote. You are watching RS Cup Thakurpara 2021 Colors of Cricket. Is going to be, I think, Bhavesh Pawar open the bowling attack, the proud of Bhiwandi Cricket. Facing him batsman Chetan Gavari and Paresh Matre. These two are the openers. Bhavesh Pawar facing him Chetan Gavari. First ball. This time punch over the infield. Terrific shot. Couple of bounces. Cross the boundary for 4. Shot wide and punished. You can see there. Bad delivery. Punch it very hard over the infield. Couple of bounces. Cross the boundary for 4. Chetan Gavari off the mark with boundary. Bhavesh Pawar. Oh, this time good comeback, but equally played and they threw for a quick single. Paresh Matre moves up to 5. Now Chetan Gavari on his strike. Bhavesh Pawar now facing him Chetan Gavari. Beauty just past the bat. Fine delivery indeed from Pawar. Kamote 5 without loss. Bhavesh Pawar facing him Chetan Gavari. Both this time goes his back foot, beautifully played. Square cutting through the point boundary for 4. Delightful square cut. Little bit with given by Bhavesh Pawar. And look at that classical stroke. Close his body, cuts very well. Managed played between both fielder. Pressing all the way to the point boundary for 4. This is the good start from Kamote, 9 without loss. And Bhavesh Pawar, so far very expensive. This time pulls it. Ball is travelling to cow corner. Excellent stop and excellent return from the deep. Enough time, batsman gets 1. 10, both batsmen on 5 and 10 without loss. Now, Paresh Matre on his strike, facing Bhavesh Pawar. This time goes his back foot and forced as ball. They threw for a quick single. Ball is travelling to mid-on. One to ISKCO now. That marks end of the Bhavesh Pawar's over. Very expensive one was consider 11 runs. एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी विकेट के. अगली दो टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. वकी स्पोर्ट मापोली और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़. इरफान भूरे फैम टीम और नरेश मात्रे फैम टीम.
गेंदबाजी में पवन को बुलाया गया है, पवन केने। एवन पवन, हालांकि पवन इस वक्त नहीं चल रही है, लेकिन पवन चलते हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। पवन केने, ओहो बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बैट्समैन खुल गए थे वहां पर, फ्रंट फुट पे पुश करना चाहते थे। बहुत खूबसूरत गेंद। पवन केने, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए बैट्समैन परेश के लिए स्विच हिट की कोशिश, आम गेंद थी और जब तक भावेश पवार गेंद को उठाते रन पूरा किया लेग बाय के रूप में। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। कामोटे का स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के, 12 विदाउट लॉस। पवन केने, उनका सामना करेंगे चेतन गवारी। इस मरतबा पैरों के सामने टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन बना। दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से 14 पे पहुंचा है स्कोर 14। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है। 14 रन बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ सरक रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। इम्प्रोवाइजेशन बहुत ही जबरदस्त था, गेंद को आने दिया था और बहुत लेट जाकर शॉट के पीछे ये 1 रन लिया था, उस शॉट को दिखाया जा रहा है। और स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ कामोटे का 18 रन बिना किसी विकेट के। पवन केने, अच्छी गेंद बैट्समैन को छटाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। पवन बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स। बहुत खूबसूरत गेंद, ज्यादा शफल करके खेले थे बैट्समैन। चेतन गवारी आउट होके जा रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। कामोटे ने बनाए 18 रन 1 विकेट खोने के बाद। नए बैट्समैन, बहुत ही मशहूर टेनिस दुनिया का नाम बारक्या कामले बल्लेबाजी को जा रहे हैं। इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाने। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। बकी स्पोर्ट मापोली के कैप्टन इरफान भूरे फेम टीम और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के कैप्टन। गेंदबाजी में साइड आर्म गेंदबाज भिवंडी के लसित मलिंगा बनते जा रहे हैं। कपिल केने आए हैं, सामना करेंगे उनका बैट्समैन परेश मात्रे। नॉन स्ट्राइक पर बारक्या कामले हैं। पहली गेंद फुल पे लिया, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची है कारपेट के जरिए। 2 रन बना लिए परेश ने। 20 पे पहुंचा है स्कोर कामोटे स्पोर्ट्स का। 20 रन 1 विकेट। कपिल केने, इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल बैठे। गेंद डीप स्क्वायर लेग पे पहुंची, 1 रन बना। 21 पे पहुंचा है स्कोर। कामोटे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई गोरसई बी के सामने। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा लॉफ्ट किया है, क्या कैच होगा? बहुत बढ़िया रनिंग कैच। मेघनाथ थे वहां पर और बहुत बड़ा झटका लगा है। मशहूर बारक्या कामले 0 पे आउट। हालांकि शॉट
ज़बरदस्त जमाया था उन्होंने, लेकिन मेघनाथ ने बहुत अच्छा रनिंग कैच पकड़ा। बड़ी मछली जाल में फंसती भी आउट होके जा रहे, बार क्या कम लिया और कुल स्कोर है 21 रन 2 विकेट। अच्छा कैच, शुभा धुमाल कमेंट्री में जुड़ते हुए मुझसे काफ़ी याद दिलाते रहते हैं। मेरा भी तो काम ही है, मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। 21 रन इस मरतबा रन पूरा करते हुए बैट्समैन सुई चीट का प्रयास था, लेग बाय का इशारा अंपायर का। अंपायर अकबर मनियार, अंपायर मुन्ना शेख, मुन्ना पठान, अंपायर जय पवार 22 रन में। कपिल के ने नए बैट्समैन बहुत ही मजबूत काटी के रोशन मात्रे सामना करें कपिल का। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही क्रैकिंग पंच स्ट्रोक, लेकिन कमाल की फील्डिंग। 2 रन अपने टीम के लिए बचाए हैं योगेश ने। क्या शॉट निकला था बल्ले से। कपिल के ने यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला, बहुत बढ़िया ऑन ड्राइव, मिड विकेट पे खिला रही 1 रन। अब गेंद खेल को थोड़ा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 25, विकेटें गिरी है 2। 1 ओवर बचा और कहीं ना कहीं दोनों बैट्समैन सोच रहे होंगे कि 35 प्लस रन बनाए जाए। हालांकि बीसीसी के सामने जो मैच वाकबिल ने जीता वो कमाल का मैच था। हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियल ओवर में पंकज गोंदले, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना असली चेहरा बता दिया। आखिरी ओवर के लिए राहुल केने आए। वकी स्पोर्ट मापोली के कैप्टन, टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। वकी स्पोर्ट मापोली के कैप्टन इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को आउटफील्ड में, थोड़ा चूक होगी वहां पर, 2 रन पूरे। 1 शॉट का इशारा, 1 ही रन आता हुआ स्कोर में 26 रन। राहुल उछाल दिया गेंद को, फील्डर के लिए मौका नहीं, 6 रन। एफर्टलेस शॉट, सिर्फ कलाइयों में ताकत भर दी थी। ये देखिए किस तरह से फ्लिक विथ द रिस्क जो शॉट खेला था, उछलता हुआ स्कोर 34 पे पहुंचा है, 32 पे पहुंचा है कामोटे स्पोर्ट्स का। एक और आसमानी टोला, क्या ये जाएंगी मैदान के बाहर? यस, हाई एंड सम 6 रन। रोशन के शॉट भी रोशन है, ये देखिए दूर गगन की छांव में भेज दिया, फलक बोस शॉट, मानो गेंद आसमान को बोसा लेकर जमीन पे आई हो। ओ बढ़िया वापसी, डॉट गेंद, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी। स्कोर है 38 रन 38।
हॉकी स्पोर्ट मापुली के कैप्टन मारूफ भाबिया है, जो कि बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं। बढ़िया बाउंसर, कान के पास से जाता हुआ जागते रहो का आदेश देता हुआ। एक गेंद बची है और स्कोर 38 रन है। वो अल्टी पल्टी शॉट, 1 रन बनता हुआ। लेग बाय 39 रन में 40 की चुनौती गुरसई बी के सामने। आइए अगले टॉस के लिए मैं शुभात धुमाल से कहूंगा कि आपको टॉस करना है। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। तर नाणेफेक केली जाईल कामतगर विपक्ष मापुल या दोन संघामध्ये। राहुल ठाकरे जे या स्पर्धेचे एमडी आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाईल। RS चषकाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राहुल ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक केली जाणार आहे। हे नाणं आपण पाहू शकता, एका बाजूला बुम बुम सुभाष ठाकरे तर दुसऱ्या बाजूला कुलमॅन हरेश ठाकरे। हरेश ठाकरे नाणेफेक जिंकलेले आहे, ती कामतगर संघाच्या संघटनेने फक्त आपला निर्णय सांगायचा आहे। बॅटिंग प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेले तर टॉस बॉक्सवरून न्यूज आहे, कामतगर संघाच्या संघटनेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेले आहे। बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स अजय घरत। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष धुमाल और सिद्दीक भाबे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत RS ग्रुप ठाकुरपाड़ा आयोजित RS कप 2021 में। टूर्नामेंट की पहली रात लगातार गहराती जा रही है और मुकाबले भी बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। दो बड़े टीमों के बीच की ये टक्कर है। विहान मित कुमार गोरसई बी और जय हनुमान कामोठे के बीच में ये मुकाबला। कामोठी टीम ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है, 4 ओवर्स में 39 रन बनाए हैं और 40 रनों की एक कड़ी चुनौती पेश की है गोरसई बी टीम को। गोरसई बी टीम का जो विजय रथ है उसको रोकने की बड़ी चुनौती कामोठी टीम के सामने है। पहले राउंड का ये मुकाबला है। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स जो हमने देखे हैं, गोरसई बी टीम लगातार जीत रही है। मेयर कप को उन्होंने जीता, उसके बाद गुरवली निम्बोली में जो टूर्नामेंट हुआ आमदार कप, उस टूर्नामेंट को भी जीता गोरसई बी टीम ने। और फिर आमने में जो विवेक एंटरप्राइजेस कप हुआ उस टूर्नामेंट की भी विजेता बनी है गोरसई बी। और अब यहाँ पर RS कप में गोरसई बी टीम को हम एक्शन में देख रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है गोरसई बी, लेकिन इस मैच में अच्छी चुनौती पेश की है कामोठे के बल्लेबाजों ने। हालांकि बारकिया कामले से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा रहती है, वो कुछ योगदान नहीं दे पाए, 0 पर आउट हुए। लेकिन सलामी बैट्समैन चेतन गवारी ने 11 रन बनाए, 2 खूबसूरत चौके लगाए थे। 9 रनों का योगदान दिया परेश मात्रे ने और आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए थे रोशन मात्रे ने, जिन्होंने 16 रनों की नाबाद पारी खेली। और पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे हैं कि 4 ओवर में 30-32 रन भी काफ़ी अच्छा टोटल साबित हो रहा है। तो 40 रनों का टारगेट ज़रूर एक बहुत अच्छा टारगेट है। हालांकि गोरसई बी टीम की बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कामोठी टीम को ये मैच जीतना है तो गेंदबाजी अच्छी ही करनी पड़ेगी। बल्लेबाजों ने तो मैं समझता हूँ कि अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी गेंदबाजों पर है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं गोरसई बी टीम के लिए पवन केने और मेघनाथ केने। एक समय हमने देखा कि जब लगातार पवन केने और संदेश केने ओपन करने आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा खराब रहा है पिछले कुछ समय में, जिस वजह से अब पवन के पार्टनर काफ़ी चेंज हो रहे हैं। कभी भावेश पवार उनके साथ आते हैं तो कभी मेघनाथ, अलग अलग बल्लेबाज ओपन करने आ रहे हैं। पवन केने स्ट्राइक लेने की तैयारी में, कमाल के खिलाड़ी है पवन केने भी।
और पहला ओवर लेकर बारक्या कांबळे। ऑफ साइड में पवन के लिए 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ रखा गया है। ऑन साइड में 4 फील्डर्स है, लॉफ्ट किया गेंद को, ओ बेहतरीन कोशिश, अपने आप को झोंक दिया वहां पर फील्डर ने डीप मिड विकेट की दिशा में और निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। कैच के लिए ही हालांकि उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन कैच का मौका तो नहीं था, लेकिन क्या कमाल का क्षेत्ररक्षण। अमित गोवारी थे वहां पर। ये देखिए कलाइयों में ताकत भरते हैं, कलाइयों में काफी ताकत है पवन के। हाथ खोलने के लिए जगह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उठाकर खेल दिया था। सीधी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया पवन को। फिर से ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, इस बार क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया था। गेंद में कोई विशेष बात तो नहीं थी, थोड़ा आगे रखी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर थी, लाइन अच्छी थी। बारक्या राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा से भटक गए, लेग स्टंप के बाहर वाइड। अंपायर अजय पवार मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है इस मैच में अकबर मनियार। सॉरी तुषार जी वहां पर अंपायर है स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में, और अकबर जी यहाँ पर मंच पर है इस समय। अगले मैच में वो जरूर अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच एक सिंगल, स्कोर 4 पर पहुंच चुका है। 10 का आस्किंग रेट है। कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और फिर से एक तेज सिंगल। मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, उसके बावजूद भी एक रन चुराने में कामयाब। अच्छी नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में है। बारक्या कांबळे काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत मशहूर खिलाड़ी है, ओपन क्रिकेट में भी खेलते हैं। इस बार घुमा दिया है, स्क्वायर लेग फील्डर के सामने से गेंद को निकाल दिया, गैप में 4 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा बैकवर्ड था और स्क्वायर लेग अंपायर के सामने से बिल्कुल गेंद को निकालने में कामयाब रहे पवन केनी। इस पारी में लगने वाला ये पहला चौका। पवन पहुंचे 7 पर, टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी, जितना एलिवेशन चाहते थे उतना बना नहीं पाए, लेकिन गैप में खेलने में कामयाब और पावर प्ले का कहीं ना कहीं फायदा मिला है पवन केनी को। ऑन साइड में केवल एक ही खिलाड़ी बाउंड्री पर रखा गया था। अब फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर मिड ऑफ की दिशा में और मिड ऑन को पीछे भेजा गया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और उसी दिशा में लॉफ्ट किया है गेंद को डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, जो प्लान बनाया गया था उसके तहत ही गेंदबाजी हुई और विकेट प्राप्त कर लिया है बारक्या कांबळे ने। पवन को अपने जाल में उन्होंने फंसा लिया। देखिए इस गेंद के लिए उन्होंने फील्ड में परिवर्तन किया था। गेंद भी बहुत अच्छी, फुलर लेंथ, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ रखा था और सामने लॉफ्टेड शॉट खेला। जोखिम उठाया पवन केनी ने, लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए, ऊंचाई ज़्यादा थी स्ट्रोक में और अंतर गेंद पार नहीं कर पाई, जो कि चाहिए था उनको बाउंड्री को पार करने के लिए। तो पवन केनी 7 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विहान मित कुमार, गोरसई बी। बचे हुए 3 ओवर्स में 31 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए गोरसई बी टीम को। गोरसई बी टीम जब खेलती है तो कई बार ये देखने को मिलता है कि ऑनलाइन जो व्यूवर्स की संख्या होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, दुगनी तिगनी हो जाती है। चाहे फिर गोरसई बी टीम दोपहर में खेले, सुबह में खेले, शाम में खेले या फिर रात में खेले। बड़ी टीम है, लेकिन कामोटी टीम भी जब खेलती है तो उनके भी कई फैंस ऑनलाइन आ जाते हैं। बारक्या कांबळे जैसे बेहतरीन खिलाड़ी उनके पास है और बारक्या कांबळे ने कहीं ना कहीं अपना काम बखूबी से निभाया है। पावर प्ले के ओवर में ज़्यादा रन्स भी नहीं खर्च किए और एक विकेट भी प्राप्त किया। नए बैट्समैन भावेश पवार आए हैं क्रीज पर। भावेश पवार इन दिनों बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, खास तौर पर उनकी बैटिंग। मेयर कप में जिस तरह से उन्होंने लगातार 4 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स लिए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, वो कमाल ही था। शॉट ऑफ लेन पुल कर दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर बहुत दूर, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटते हुए भावेश पवार के एंड पर थ्रो किया गया। भावेश पवार को रन आउट करना बहुत मुश्किल, थोड़ा भी उनको समय मिल जाता है तो 2 रन आसानी से वो बटोर लेते हैं।
कहीं ना कहीं गलत एंड पर थ्रो किया गया था। गेंदबाजी के लिए आए हैं रोशन म्हात्रे, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर। देखना है अब ये 4 है या 6, और 4 रनों का इशारा। बहुत बढ़िया शॉट। मेघनाथ भी इन दिनों अच्छे फॉर्म में है और इसीलिए उनको ऊपर भेजा जा रहा है, नहीं तो पहले वो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा खेलते थे। ये देखिए थ्रू द लाइन उठाकर खेल दिया है। इस मैच में जो बैटिंग देखने को मिल रही है वो काफ़ी उच्च कोटि की बैटिंग देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने जो मुकाबले देखे, कहीं ना कहीं बॉलर्स का ज़्यादा बोलबाला रहा, लेकिन इस मैच में अच्छे स्ट्रोक्स भी देखने को मिल रहे हैं। रोशन की अगली गेंद फिर से कहीं ना कहीं काऊ कॉर्नर की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद जा रही है मिड विकेट पर डीप में, इनसाइड एज लगा था बल्ले का। केवल 1 रन इस बार, 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 40 रनों का। अब 15 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, और इस तरह के समीकरण बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। मैच अभी भी बिल्कुल बराबरी का माना जा सकता है। भले ही भावेश पवार इस समय क्रीज पर है, मेघनाथ क्रीज पर है, लेकिन कंडीशंस कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए अनुकूल है। और यहाँ से यदि 1-2 विकेट्स जल्दी जल्दी चटकाते हैं कामोटे के गेंदबाज, तो ज़रूर उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। अगली गेंद राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ पुल करना चाहते थे भावेश, ठीक तरह से अपना स्ट्रोक जमा नहीं पाए, लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। 1 रन और खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से भावेश पवार का। भावेश पवार का विकेट तो हमेशा कीमती रहता ही है, लेकिन मेघनाथ भी अच्छे टच में है, उनको भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आउट करना होगा, नहीं तो गोरसई टीम आसानी के साथ भी ये मैच जीत सकती है। 14 गेंदों में 23 रन अब चाहिए। पहले ओवर में 9 रन आए थे, इस ओवर में 8 रन अभी तक खर्च किए हैं रोशन ने, और गेंदबाजी में वो कोई ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हुए नज़र तो नहीं आए हैं। 2 गेंदें उनके ओवर में शेष है। थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी भी कर रहे हैं। फिर से शॉर्ट पेच, और इस बार लगा किनारा। बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। विकेट का पतन होता हुआ मेघनाथ लौटते हुए पेविलियन की राह पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी ज़्यादा की जा रही है इस ओवर में, लेकिन ये शॉर्ट पिच गेंद ज़्यादा जोर लगाकर की थी उन्होंने, और बड़े ही ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे। हुक करना चाहते थे बैट्समैन, ऊपरी किनारा लगा, और अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर द्वारा। कप्तान परेश म्हात्रे इस समय विकेट कीपर की भूमिका में। मेघनाथ आउट होने से पहले 8 रनों का योगदान दे पाए। पवन ने आउट होने से पहले 7 रन बनाए थे। सही समय पर यह विकेट मिला है जय हनुमान कामोठे टीम को। समीकरण 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। एक और रोमांचक मुकाबला आरएस कप 2021 में। नए बैट्समैन राहुल केने आए हैं। राहुल केने की गेंदबाजी थोड़ी सी चिंताजनक है इस सीजन में, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही है। जो आमने में विवेक एंटरप्राइजेस कप हाल ही में समाप्त हुआ, वहां पर पहले राउंड में जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के विरुद्ध टीम बैकफुट पर चली गई थी। 3 ओवर में 9 रन बने थे, लेकिन आखिरी ओवर में राहुल ने 17 रन बनाए थे, और वहां से मैच पलटा था। बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई नजर आई, बीट किया बैट्समैन को, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ रोशन म्हात्रे का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जो रिक्वायर्ड रेट पारी की शुरुआत में था 10 रन प्रति ओवर, वो अब थोड़ा ऊपर जाता हुआ 11.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बनाने हैं गोरसई बी टीम को। 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, भावेश पवार एक ऐसे खिलाड़ी है जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत आसानी के साथ बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि भावेश पवार का विकेट गेंदबाज चटकाने में कामयाब होते हैं इस ओवर में, तो ज़रूर ये मैच और भी ज़्यादा रोमांचक हो सकता है, और कहीं ना कहीं भावेश पवार के लिए भी उतना आसान तो नहीं होगा। फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज़। कामोटे के कैप्टन, समय का ख्याल रखना है, आपको 20 मिनट के भीतर 4 ओवर्स पूरे करने हैं। बड़ी मंत्रणा हुई
बहुत बड़ी टीम मीटिंग देखने को मिली कामोटी टीम द्वारा, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि तीसरा ओवर दैवत मात्रे करेंगे। बायत के गेंदबाज है। काफी सोच विचार करने के बाद दैवत को गेंद सौंप दी है कैप्टन ने, और काफी ज्यादा वार्म अप करते हुए इस समय गेंदबाज, लेकिन समय का ख्याल रखना होगा। वकी स्पोर्ट्स मापोली के रविश बॉन्ड, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच की तरफ आना है, कमेटी से संपर्क करना है। 12 गेंदे और 23 रनों की दरकार गोरसई बी टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। कामोठे टीम भी एडी चोटी का जोर लगा रही है मैच को जीतने के लिए। एक रायगढ़ की बड़ी टीम है तो दूसरी भिवंडी ग्रामीण की बहुत ही शानदार टीम और बेहतरीन टीम। शफल करते हुए निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग क्षेत्र में, खाली क्षेत्र में खेल दिया है भावेश पवार ने। 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फाइन लेग सर्कल के अंदर था, उस खिलाड़ी को बीट करना था। एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है और दोनों के बीच में बड़ा फासला था। वो गैप पहले ही देख लिया था भावेश पवार ने, अपना इलाका चुन लिया था और अच्छा एग्जीक्यूशन भी। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को निकाल दिया था गैप में 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ दैवत का स्वागत होता हुआ इस ओवर में गोरसई बी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विहान मित कुमार के नाम से इस टूर्नामेंट में खेल रही है जय बजरंग गोरसई बी। ओ एक और खूबसूरत शॉट, लेकिन इस बार गैप मिला नहीं है, लेकिन गैप दे दिया फील्डर ने। खराब फील्डिंग, 4 रन और। बहुत ही साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण। कामोटी टीम के खिलाड़ियों से ये किसी को भी उम्मीद नहीं होती है कि इतनी खराब फील्डिंग देखने को मिलेंगी। शॉट जरूर अच्छा था, ओवर पिच गेंद थी और बड़े अटपटे ढंग से हालांकि ये स्ट्रोक खेला था। लॉफ्टेड शॉट था डीप मिड विकेट की तरफ, 2 बाउंस और फिर फील्डर तक पहुंची, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग। मिसफील्ड हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर। लगातार दूसरा चौका भावेश पवार के बल्ले से। समीकरण अब 10 गेंदे शेष, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। ऑन साइड में 4 बाउंड्री राइडर्स। तीन बाउंड्री राइडर्स है। इस बार हल्के हाथों से टर्न कर दिया है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भावेश पवार द्वारा। परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से भाप जाते हैं, मैच की सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए भावेश पवार बल्लेबाजी करते हैं और इसीलिए इतने महान खिलाड़ी है। जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है अब गोरसई बी टीम, लेकिन वापसी गेंदबाज भी कर सकते हैं। दैवत भी क्षमता रखते हैं कि वो भावेश पवार को भी तंग कर सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं और पलटवार जल्द से जल्द करना होगा। 9 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की ज़रूरत। ऑन साइड में एक फील्डर और बढ़ा दिया गया है, इससे पहले 4 थे अब 5 किए गए हैं। मिड विकेट की तरफ सर्कल के थोड़ा सा अंदर वहाँ पर खिलाड़ी रखा गया है। और ये इस बार देखिए रिवर्स स्वीप खेला था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है बैकवर्ड पॉइंट पर। बहुत तेज स्ट्रोक था, गेंदबाज बिल्कुल भी खुश नहीं है दैवत। हालांकि यह ज़रूर है कि उन्होंने भी तालियां तो बजा दी आखिरकार अपने फील्डर के लिए कि कोशिश बढ़िया थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है वो भी भावेश पवार का। बहुत रैपिड स्ट्रोक था ये। फील्ड को देखते हुए शॉट्स खेले जा रहे हैं भावेश पवार द्वारा। हालांकि ये स्ट्रोक उनका फंस गया था, लेकिन किस्मत अच्छी, और कहा जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। भावेश पवार बड़ी बहादुरी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 28 पर पहुंच चुका है। 8 गेंदे शेष, 12 रनों की जरूरत। अगली गेंद का सामना करेंगे राहुल केने। अभी भी मैच अच्छी स्थिति में बना हुआ है। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, अपना संतुलन गवा बैठे बैट्समैन, लेकिन गेंद दिशा इन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। वाइड घोषित कर दिया है अंपायर जय पवार ने। 8 गेंदे और जीतने के लिए अब 11 रनों की जरूरत। पहला ओवर बारकिया का अच्छा रहा था, उसके बाद रोशन ने भी अच्छी वापसी की थी, लेकिन ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ है क्योंकि फील्डर्स का कहीं ना कहीं साथ नहीं मिला है दैवत को। इस बार आड़े बैट से सामने प्रहार किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, सिर्फ 1 रन। 1 गेंद अभी भी इस ओवर में शेष है। सिंगल की मदद से स्कोर 30 पर पहुंचता हुआ। टारगेट है 40 रनों का, यानी कि अब 7 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। 7 गेंदे और 10 रन।
भवेश पवार फील्डिंग का मुआयना करते हुए थोड़ा सा स्क्वेयर ऑन स्टांस लेकर खड़े हैं इस समय भवेश पवार। क्या भवेश पवार का विकेट चटका पाएंगे इस गेंद पर दैवत? आइए देखते हैं। जी हाँ, बहुत ही शानदार गेंद, बोल्ड कर दिया भवेश पवार को। विकेट की सख्त जरूरत थी। भावेश पवार कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतना चाह रहे थे, छोटी बैकलिफ्ट से पुश करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को चूक गए और क्लीन बोल्ड। बहुत ही बड़ा झटका विहान मित कुमार गोरसई बी टीम को। गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी और गेंद के लाइन के थोड़ा सा बाहर उनका बल्ला था। बल्ले और पैरों के बीच में जो गैप था उसी में से गेंद निकल गई। ये देखिए, सिंगल लेना चाहते थे कहीं ना कहीं हल्के हाथों से खेलते हुए, स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे भावेश पवार, लेकिन उसमें चूक गए और क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन में लौटते हुए। अच्छी बैटिंग कर रहे थे भावेश पवार, बड़े कंट्रोल के साथ खेल रहे थे। 12 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह मैच काफी रोमांचक स्थिति में, 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। गोरसई बी टीम को चाहिए 10 रन। दैवत ने आखिरकार वापसी करके दिखाई। हालांकि 13 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन बहुत ही बड़ा विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया है। मैच बड़ा ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। 6 गेंदें और 10 रन। नए बैट्समैन आए हैं संदेश केने, ज्यादातर ओपन करते रहे हैं गोरसई बी टीम के लिए। संदेश बायत के बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज है। राहुल केने अच्छे फॉर्म में है, स्ट्राइक राहुल केने के पास है। निखिल गोवारी के हाथ में है गेंद। निखिल को भी कहीं ना कहीं अपने करियर की सबसे अच्छी शायद गेंदबाजी करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि नंबर 1 टीम उनके सामने है गोरसई बी। निखिल चले, राइट आर्म राउंड द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेल दिया है। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन गेंद जा रही है आउटफील्ड में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। दूसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज, विकेट कीपर के पास थ्रो, 1 शॉट का इशारा और क्या बैट्समैन आउट हुए हैं? जी हाँ, रन एक भी नहीं मिलेगा। काफी मेहनत की दोनों बल्लेबाजों ने, लगभग दूसरा रन भी वो पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन पहला रन ठीक तरह से कंप्लीट नहीं किया था, शॉर्ट रन था और दूसरे रन के चक्कर में राहुल केने आउट हुए हैं। ये मैच बिल्कुल बराबरी का है इस समय, 50-50 मैच, नेक टू नेक फाइट चल रही है और दिलों की धड़कनें धीरे धीरे तेज होती हुई। रात गहरी और संघर्ष भी गहरा। कामोठे बनाम गोरसई बी, 5 गेंदें बची है, 10 रनों की आवश्यकता विहान मित कुमार गोरसई बी टीम को। इस मैच का टॉस गोरसई बी टीम ने जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। कामोटी टीम की ओर से बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, खासतौर पर रोशन मात्रे ने 2 सिक्सर्स की मदद से नाबाद 16 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों ने भी अच्छा स्टार्ट दिया था। चेतन ने 11 रन बनाए थे, परेश 9 रन बनाकर नाबाद रहे और 39 रन बनाए थे 4 ओवर्स में। कठिन परिस्थितियों में अच्छा स्कोर खड़ा किया बल्लेबाजों ने और गेंदबाज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए। पहले 3 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट चटकाया है। नए बैट्समैन आए हैं विजय चंदने, आते ही उन्होंने गेंद को घुमा दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 4 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। कमाल का मैच, एडी चोटी का जोर दोनों भी टीमों के खिलाड़ी लगा रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। एक तरह से ऐसे लग रहा है कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच हो रहा है, जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही है। हार मानने के लिए कोई भी टीम तैयार नहीं है। 4 गेंदें और 9 रन। हालांकि ये मैच पहले राउंड का है, लेकिन जबरदस्त संघर्ष हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। बहुत ही शानदार नोकझोंक है गेंद और बल्ले के बीच में, जबरदस्त घमासान है। फील्डिंग में परिवर्तन, क्योंकि अब बायात के बैट्समैन संदेश के पास स्ट्राइक है। ऑफ साइड में उनके लिए शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट, ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग। दूर से ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी जरूर है, लेकिन सामने खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है। विजय चंदन ने चाहते थे कि दूसरा रन लिया जाए, लेकिन बहुत अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के पास। टाइट बॉलिंग और टाइट फील्डिंग देखने को मिल रही है कामोटे टीम द्वारा। 3 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। अब सिंगल डबल से बात बनने वाली नहीं है गोरसई बी टीम की, कम से कम एक बड़ा शॉट चाहिए, चौका या फिर सिक्सर।
विजय चंदने बिल्कुल क्षमता रखते हैं कि किसी भी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेल सकते हैं। निम्बोली के आमदार चषक में फाइनल मैच में जब 17 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, वो उन्होंने बनाए थे, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर बहुत दूर, विकेट कीपर गेंद के पास पहुंचे, बाउंस पर फील्ड किया, यहां पर मौका बन सकता है। जी हाँ, बैट्समैन रन आउट। कहीं ना कहीं अब कामोटे टीम फेवरेट नजर आ रही है इस मैच में। 2 गेंदें बची है, 7 रन चाहिए। पिछले 7-8 गेंदों पर यदि हम देखें तो गेंदबाज हावी रहे हैं। तीसरे ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े थे भावेश पवार ने, लेकिन उसके बाद दैवत ने अच्छी वापसी की। भावेश पवार को उन्होंने अपने अंतिम गेंद पर आउट किया और इस ओवर में निखिल ने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। मात्र 3 रन खर्च किए हैं, 2 बल्लेबाज रन आउट हुए हैं इस आखिरी ओवर में। 2 गेंदें और 7 रन। मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर, सुपर मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। एक सुपर ओवर भी हमने देखा है। एक मैच टाई हुआ है जो भिवंडी सिटी क्रिकेट का मुकाबला था, बालाजी स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के बीच में। ग्रामीण फॉर्मेट से अभी तक कोई मैच टाई नहीं हुआ है, लेकिन हो भी सकता है। तीनों भी नतीजे इस समय पॉसिबल है, या तो गोरसई बी टीम जीतेगी, या तो कामोटी टीम जीतेगी, या फिर यह मैच टाई होगा। संदेश के पास स्ट्राइक, नए बैट्समैन योगेश। अभी मैच टाई होता है या फिर कोई टाई टाई फिश होता है, ये देखने वाली बात है। अगली गेंद, खूबसूरत गेंद, बीट किया है बैट्समैन को, निशाना सटीक है और बैट्समैन रन आउट। रन आउट पे रन आउट। आखिरी ओवर में अभी तक 3 बल्लेबाज रन आउट हो चुके हैं। एक गेंद शेष है, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। विकेट कीपर के हाथों से रन चुराना चाहते थे, लेकिन योगेश अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं पाए। एक गेंद और 7 रन, सिक्सर लगता है तो मैच टाई। सिद्दीक जी ने तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया है कि सिक्सर लगेगा। जो बालाजी और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में मैच टाई हुआ था, उसमें भी उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि मैच टाई होगा और सुपर ओवर होगा, तो वो तो भविष्यवाणी उनकी बिल्कुल सही साबित हुई थी। एक गेंद 7 रन, व्हाट अ मैच। गोरसई बी के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। संदेश केने नॉन स्ट्राइकर है इन पर। नए बैट्समैन के पास स्ट्राइक रहेगा। कपिल केने आए हैं। कपिल केने जरूर अपनी गेंदबाजी के लिए काफी मशहूर है, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर है। बिल्कुल वो भी क्षमता रखते हैं कि इस आखिरी गेंद पर छक्का जड़ सकते हैं, लेकिन निखिल गोवारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने अंडर प्रेशर। कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है गोरसई बी के बल्लेबाजों को। एक गेंद और 7 रन। गोरसई बी टीम को यह मैच जीतना है तो सुपर ओवर में मुकाबला लेकर जाना पड़ेगा कपिल केने को, यानी कि छक्का जड़ना होगा पहले उनको। फील्डिंग की जमावट, बाउंड्री पर 5 खिलाड़ी, जिसमें एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर है, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, वाइडिश गली और एक खिलाड़ी पॉइंट पर। आखिरी गेंद लेकर निखिल, बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, और इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है। जय हनुमान कामोटे टीम ने बहुत बड़ी टीम को परास्त किया है उन्होंने। गोरसई बी टीम का जो विजय रथ था वो कहीं ना कहीं उन्होंने रोक दिया है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जय हनुमान कामोटे एंड हार्ड लक विहान मित कुमार गोरसई बी। आरएस कप 2021 में गोरसई बी टीम पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है कामोटे टीम के लिए। 16 रनों की नाबाद पारी खेली और जब गेंदबाजी के लिए आए तो 8 रन देकर 1 विकेट चटकाया। रोशन मात्रे। दोनों टीमों के खिलाड़ी इस समय हैंडशेक्स करते हुए अभिनंदन करते हुए गोरसई बी टीम के खिलाड़ी, कामोटे टीम के खिलाड़ियों का, और गोरसई बी टीम को आने वाले समय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कामोटी टीम के खिलाड़ी। बहुत अच्छा ये जेस्चर रहता है। ये खूबसूरत टॉस बॉक्स हरिभक्त परायण अनंता शंकर ठाकरे
जो कि नाम पर बनाया गया है। बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा द्वारा आप देख रहे हो इस समय आरएस कप 2021। तर जाऊया आपण मित्रांनो मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूकडे। मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरलेला आहे रोशन म्हात्रे, अष्टपैलू कामगिरी केली आहे। नरेश चौधरी साहेब आणि सुभाष ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पारितोषिक देत आहोत। सुरुवातीला आकर्षक गिफ्ट हॅम्पर आणि द फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंटचं हे डिस्काउंट कूपन आहे। थम्सअप आपण देतोय देवा यांच्या शुभ हस्ते आणि त्यानंतर आकर्षक मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी माननीय श्री नरेशजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत। वेल डन अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स रोशन म्हात्रे, पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तर सामनावीराचे जे पुरस्कार या स्पर्धेसाठी लाभलेले आहेत, जे पुरस्कर्ते आहेत मॅन ऑफ द मॅचचे, त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतो। या स्पर्धेच्या माध्यमातून ट्रॉफी साठी सौजन्य लाभलेलं आहे माननीय श्री मुरलीधर केणी साहेबांचं, विद्यमान सरपंच गोरसई गाव। तसेच गिफ्ट आम्हाला मिळालेले आहेत करेशजी म्हात्रे, करेश क्रिएशन्सच्या माध्यमातून, त्यांचे देखील विशेष आभार। द फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंटचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि शीतपेय आम्हाला लाभलेलं आहे माननीय श्री अनंता ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून, ठाकूरपाडा गावचे उद्योजक, त्यांचे देखील विशेष आभार। जाऊया आपण पुढील मॅचकडे। आणखी एक मोठी मॅच तुमच्या भेटीस येत आहे, वकी स्पोर्ट्स महापोली विरुद्ध जॉली स्पोर्ट्स कामतघर। या सामन्याची नाणेफेक जिंकली जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाच्या कॅप्टनने प्रथम फलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय। विनंती असेल कामतघर टीमच्या कॅप्टनला लगेच सलामीची जोडी आपली मैदानात पाठवायची आहे। समालोचन कक्षामध्ये आम्ही थोडा बदल करतोय, मायक्रोफोनवर येत आहेत आमचे ज्येष्ठ समालोचक सिद्दीकजी भाबे।